Right. Good. So today we are going to start with a very interesting topic, which is called as total internal reflection. And that is the reason that you can hear me properly. You can see this video lecture because of total internal reflection. Why? Because I have a fiber optic connection, high speed data, and that works on this principle called as total internal reflection. तो आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं जो लिख रहा हूँ देख पा रहे हो, and you are live in this session is all because of this particular concept. All right, so let's see what is total internal reflection. देखो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्लास स्लैब. मान लेते हैं मेरे पास ग्लास स्लैब है, थोड़ा बड़ा लेता हूँ. ओके, अब लेट अस अज्यूम कि इस ग्लास स्लैब में एक पॉइंट सोर्स है. Point source मतलब some source of light, let us say. So let us say we have a ray of light over here. I mean source of light, not ray of light, a source of light over here. तो क्या होगा, ये जो point source है, it will emit light in all possible direction. तो light will go straight also, मतलब perpendicular to the interface. Then light will also go something like this, right? So it should go something like this. अब क्योंकि light is changing medium, light is going from denser medium into rarer medium, it must bend away from normal. तो मुझे पहले normal दिखाना पड़ेगा, normal to the surface. So let's draw normal to the surface. तो ये हो गया आपका normal to the surface over here, right? Good. अब हमने बेसिक फिजिक्स सीखा है, जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट बेंड होगा टूवर्ड्स या अवे, बट इस केस में अवे होगा. व्हाई अवे? बिकॉज as I told you, light is going from denser to rarer medium, so it is bending away from normal. Good. तो और ray of light होगा, right? What we are noticing here is, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ते जा रहा है. लेट अस से दिस एंगल इज I1, this angle let us say is I2, right? तो definitely I2 जो है that is greater than I1, है ना? I2 is greater than I1. तो जैसे जैसे रे जो है वो सोर्स से दूर हो रहा है या फिर नॉर्मल से दूर हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग. एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते जा रहा है. सो फॉर दिस रे there will be more refraction. Okay, there will be more refraction for this particular angle of incidence. Okay, so for one particular ray, the angle of refraction will be equal to 90 degree. तो ऐसा होगा वो, मतलब angle of refraction is 90 degree. Okay, right? Let me extend this little bit. अब what will happen after this particular angle? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल दिखा देता हूँ. तो नॉर्मल इज समवेयर ओवर हियर. ये जो एंगल बना है यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री. So R is equal to 90. This particular angle of incidence is called as critical angle. तो critical angle का मतलब क्या होता है? We'll see in details. Again, for the time being,
you have to just understand the concept. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अलग अलग रेज ऑफ लाइट दिखा रहा हूँ। यहाँ इस केस में हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट है, the source is inside the denser medium, so the rays of light are traveling from denser into rarer, right? हमको ये पता है when a light ray travels from denser into rarer medium, it bends away from normal, right? So for one angle of incidence, the ray angle of incidence I1, there is some angle of refraction, and that some angle of refraction, let us say, is R1. For angle I2, और यहाँ पे I2 is greater than I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा है, फॉर a particular angle of incidence in denser medium, the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. That particular angle of incidence is called as critical angle. Critical क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो, so if you have angle of incidence, let us say here I4 greater than critical angle, if angle of incidence is greater than critical angle, in that case there is no refraction of light, light is totally internally reflected। तो जो लाइट होगा वो अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। the light is not going outside, the light is not able to go outside, okay? This phenomena is called as total internal reflection, okay? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर कर देंगे एंड विद नॉमेनक्लेचर वी विल स्टडी दिस अगेन। हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास एक इंटरफेस है एक्स वाई। मैं ऑलरेडी बताया इंटरफेस इज सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये ग्लास है, ग्लास के अंदर मैंने एक लाइट का बल्ब रख दिया एट ओ। जो भी रे इंटरफेस एक्स वाई को परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगा, मतलब ओ ए रे, दैट विल नॉट रिफ्रैक्ट, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट। ये मैंने कल ही बताया था। क्यों? क्योंकि ये स्नेल्स लॉ से आता है। स्नेल्स लॉ टेल्स यू n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। यहाँ पे तो i की वैल्यू ही 0 है, तो 0 इक्वल टू n2 sin r, मतलब r इक्वल टू 0 आ गया, राइट? तो r इक्वल टू 0 आ गया बेसिकली, ओके? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 आ गया, मतलब लाइट विल नॉट बेंड। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, राइट? देन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम is 90 degree. This particular angle is called as critical angle. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो रे ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट? राइट। तो व्हाट आर द कंडीशंस to have total internal reflection? There are two conditions. हमारे पास दो conditions है under which total internal reflection can occur. पहला condition ये है that the light must be traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium always. दूसरा condition ये है the angle of incidence should be greater than critical angle. ये दो condition है, right? Correct? तो टॉपिक बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे सिर्फ अलग अलग रे ऑफ लाइट लिया, ओ ए, ओ बी,
OC, OD, etc., right? OE. And for each of this ray we have increased angle of incidence. We have increased मतलब अपने आप ही हो रहा है. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा. द लाइट इज बेंडिंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फॉर वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of refraction is 90 degree, right? Good. That angle is called as critical angle. Angle of incidence in rarer medium, in denser medium, for which the angle of refraction in rarer medium is 90. That angle is called as critical angle. अगर angle of incidence critical angle से ज्यादा हुआ तो light will be totally internally reflected. Correct? Good. So this is what we must know first. फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल को एक बार और प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और क्रिटिकल एंगल से एक फॉर्मूला बनाएंगे. वी विल मेक अ रिलेशन. हम लोग क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला बना लेंगे, राइट? बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड राइट डाउन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार. तो हम लोगों को, एज आई टोल्ड यू, वी डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स. हम लोगों को जो जो समझा है वही लिखना होता है. तो विल स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री xy, लेट अस से इन दिस केस मैंने xy नाम दिया है उस इंटरफेस को. पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड. ओके, रे ऑफ लाइट जब बाउंड्री पे जाएगा तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, पता है, तो हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, राइट? ओके, देन what we know is, we know that when a ray of light travels from an optically denser medium, or from a denser medium into a rarer medium, it bends away from normal. This is what we know. Okay, so let us consider a source of light inside denser medium. मैं इसको बोल देता हूँ medium 1. So I will call this as medium number 1. Okay, so this optically denser medium is called as medium number 1. हम बाद में उसको लिख देंगे. So consider a source of light inside a denser medium. Okay, ray OA, okay, as shown in figure. That is good. Ray OA from the source is incident normally on the interface. and normally का मतलब क्या होता है वो भी लिख देंगे. normally मतलब angle of incidence is 0, so I is 0 on the interface, hence there is no refraction, hence there is no refraction. मतलब basically value of R is 0, right? Then इसके बाद क्या होगा? For ray OB OC, right? For or rays OB and OC gets refracted because OB ray जो है उसका रिफ्रैक्शन होगा, OC का जो है उसका रिफ्रैक्शन होगा. with what? They get refracted with what? With angle of refraction R greater than I. क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है जब भी
रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडने का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. गुड. राइट. देन as the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases. Right. Good. For a, for a particular angle of incidence, for a particular angle of incidence, हमने डिनोट किया है इसको IC से, critical angle. For a particular angle of incidence, the angle of refraction becomes 90. The angle of refraction becomes 90. This angle is called as critical angle. This angle of incidence basically is called as critical angle. Right. अब अगर angle of incidence critical angle से बड़ा हुआ, so light never goes out from the medium. So light gets totally internally reflected. So when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light gets totally internally reflected. Correct? And this phenomena is called as total internal reflection. This phenomena is called as TIR. That TIR is total internal reflection is called as total internal reflection, that is T dot I dot R. राइट. तो आइडिया बहुत सिंपल है, मैं वापस बता रहा हूं. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. देखो समझना सिर्फ इतना था, स्नेल्स लॉ समझना चाहिए, दैट्स इट. अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो पता होना चाहिए. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, मतलब लाइट विल बेंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एक पर्टिकुलर एंगल पे, कौन से एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग डेंसर मीडियम के इनसाइड ही मेजर कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, उसको बोल दिया क्रिटिकल एंगल. बाय द वे डेंसर मीडियम, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. तो for this particular critical angle, what is happening is refraction, angle of refraction is 90 degree. Correct. अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा. राइट. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. राइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR. राइट, T dot I dot R dot, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. राइट. ओके, तो अगर मुझे इन शॉर्ट लिखना है, इफ आई वांट टू राइट इन प्रिसाइज, ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? सो व्हाट वी विल राइट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing through a denser medium
is incident on the surface of a rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle the ray is totally internally reflected in the denser medium, मतलब रेयर मीडियम में गया ही नहीं वो, राइट मैंने आपको बताया दिस इज नथिंग बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन मैंने आपको बताया देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो कंडीशन फॉर T dot I dot R. T dot I dot R. मैं थोड़ा आलसी हूं इसलिए मैं शॉर्टकट लिखने वाला हूं, तो आगे से TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दो कंडीशन, क्या कंडीशन थी? रे ऑफ लाइट हैज टू ट्रैवल, मस्ट ट्रैवल, शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो मस्ट कंडीशन है। सो द रे ऑफ लाइट must travel or must be traveling from optically denser medium to optically rarer medium। अभी ऑप्टिकली क्यों बोलते हैं? देखो नॉर्मली क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ डेंसर मीडियम तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे कि केरोसिन लिया हमने और एक गिलास में हमने पानी लिया, पानी में बहुत सारा शक्कर डाल दिया, मतलब उसको चाशनी बना ली हम लोगों ने, राइट? वी आर मेकिंग सम सिरप बेसिकली, करेक्ट? तो डेफिनेटली सिरप इज मोर डेंसर, डेंसिटी इज मोर थिकर, करेक्ट? पर यहाँ पे जब मैं ऑप्टिकली डेंसर का बोलता हूँ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट इज व्हाट आई मीन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब मीडियम 1 इन दिस केस, क्योंकि हमने सोर्स ऑफ लाइट को जहाँ पे रखा है उसको मीडियम 1 बोलते हैं हम लोग। तो जब हम लोग ऑप्टिक्स में बोलते हैं ना डेंसर मीडियम, मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। So you need to understand this. So when I say optically denser medium, it has nothing to do with density, right? It can be related to density, but it has nothing to do with density in this case. We are talking about refractive index, right? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि एक मीडियम डेंसर है कंपेयर टू अदर मीडियम, मैं बोल रहा हूँ कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। गुड, ये पहला कंडीशन था, दैट द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दूसरा कंडीशन ये था कि द रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम must be greater than the critical angle, right? Okay, these are the two conditions that are must, ये satisfy होने ही चाहिए, right? Now जैसे मैंने आपको बताया that what we are supposed to do is, हम लोगों को अब क्रिटिकल एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमको रिलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड give a small subheading here, and that subheading will be critical angle, और इसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफाइन भी करेंगे और इसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेट भी करेंगे। तो पहले हम लोग रिलेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी टास्क है ये, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टास्क। कैसे करेंगे? लेट अस से हमारे पास एक मीडियम है,
डेंसर मीडियम। ओके, तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। So what I'll do is I'll delete this and I'll draw little more thickness. Now what I will do is I'll draw a normal to the surface over here. ये आ गया normal to the surface. Then हमको क्या करना है, हमको क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है और क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है। तो ये आ गया आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और क्योंकि क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है तो द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। देन क्योंकि क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 90 डिग्री। सिंपल। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डायरेक्शन, मतलब रे, करेक्ट। और ये एंगल मैं क्रिटिकल एंगल ले रहा हूँ, इट शुड बी वेरी क्लियर। और ये एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री है, इट शुड आल्सो बी वेरी क्लियर। और ये मीडियम 1 है विच इज डेंसर मीडियम, दिस इज मीडियम 2 विच इज रेयर मीडियम। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है जिस मीडियम से लाइट जाएगा दैट इज फर्स्ट मीडियम, और जिसके अंदर जाएगा दैट इज मीडियम 2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमको क्या करना है, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल को रिलेट करना है। ये तो सिर्फ स्नेल्स लॉ ही कर सकता है। ओनली स्नेल्स लॉ हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रिलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस केस में क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट आई कैन से इज, यूजिंग स्नेल्स लॉ, what is Snell's law by the way? Snell's law था n1 sin of angle in medium 1, मतलब critical angle, equal to n2 sin of angle in medium 2, correct? Good. Then what we know is n1 upon n2 is equal to sin 90 by sin IC. Sin 90 is 1, so 1 upon sin IC, where IC is critical angle. Okay. Then what we can say is, हमको पता है n1 upon n2 is nothing but refractive index of medium 1 with respect to 2, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे मीडियम 2 को एयर लेके रखा है, मैं ले लेता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि मीडियम 2 जो है वो एयर है। ओके, गुड। मीडियम 1 इज वाटर और ग्लास, व्हाटएवर इट इज। ओके, राइट। तो आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विच इज एयर, वो होता है 1, राइट। सो दिस विल गिव मी n1 upon 1, है ना। एंड बाय द वे आई टोल्ड यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको मैं लिखूंगा जस्ट n1 बिकॉज n2 इज 1, और इसको मैं लिखूंगा जस्ट n। जस्ट n क्यों लिखूंगा, क्योंकि दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मैं ऐसा n1 क्यों लिखते बैठू। फिर आपको n1 लिखना है, आप यू कैन राइट n1 विथ नो प्रॉब्लम। ओके, कोई इशू नहीं है। इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और पिछले पेज पे जो था दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। So what we see from 1 and 2, n1 by n2 is just n, that is refractive index of denser medium. तो मुझे मिल गया n is equal to 1 upon sin IC. That gives me sine of angle, critical angle IC is equal to 1 by n.
and that gives me critical angle as sine inverse of 1 upon n, that is 1 upon refractive index. So this is how you can get the value of critical angle for a medium. मैं वापस रिपीट करने वाला हूं. देखो, the idea was simple. हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है. क्या डिफाइन किया है? दैट जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, मतलब एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा दैट इज 90 डिग्री. करेक्ट. मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया. व्हाट डज स्नेल्स लॉ टेल्स मी? n1 साइन ऑफ IC, मतलब n1 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू n2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. दिस इज स्नेल्स लॉ. तो ये आ गया स्नेल्स लॉ. गुड. तो n1 by n2 is sin 90 by sin IC. Sin 90 is 1 upon sin IC, but n1 by n2 is nothing but refractive index of medium 1 with respect to medium 2. But medium 2 is air, and hence n2 value is 1. Since for air refractive index is 1, तो मुझे मिल गया n1 by n2 as just n1. तो मैंने सिर्फ n बोल दिया उसको instead of calling it as n1. So I have refractive index of denser medium, and this denser medium can be glass, it can be water, okay, it can be some kind of syrup. 1 upon, so n refractive index of the medium is 1 upon sine of critical angle. So sine of critical angle is 1 upon refractive index. तो हमको मिल गया critical angle is equal to sin inverse of 1 by n, right? So we have obtained a formula to find out critical angle in terms of refractive index. बात ऐसी है, I could have easily told you directly this step. मैं बोलता हाँ हो गया, ऐसा है, डिराइव नहीं करता मैं, राइट? बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिराइविंग? तुम्हें ये पता होना चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू सी दिस मिस्टेक्स. जब भी इंटरफेस आया, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हुई, I don't want you to write direct formulas, even though some books say that. मैं हमेशा तुमसे ये चाहता हूँ कि you should write n1 sin of angle in medium 1, जो भी होगा. यहाँ पे ICA मैं θ1 बोल रहा हूँ, equal to n2 sin of angle in medium 2. This is what I want, क्योंकि तब जाके गलती नहीं होगी. Good. वो देखोगे आप न्यूमेरिकल्स में देखोगे. गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल. तो हमको सिर्फ डिफाइन करना है. अब ऑलरेडी डिफाइन किया है, वापस एक बार लिख देते हैं. सो हाउ डू वी डिफाइन क्रिटिकल एंगल? राइट, वी ऑलरेडी नो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from an optically denser medium into an optically rarer medium, the angle of incidence in the denser medium, क्योंकि angle of incidence हम लोग denser medium में measure कर रहे हैं, the angle of incidence in the denser medium, right, for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is called as the critical angle, is called as the critical angle, right? बहुत सिंपल है, extremely simple. So this is all you should know.
It is extremely simple. Okay, right. So just a minute, let me reorganize this thing a little bit. थोड़ा सा और, and we are done then. Okay, 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 ठीक है. Anyways, इतना उतना चलता है. Good, simple, right? Easy था. Now, as I was telling you, there is one very important topic, and because of this particular phenomena, you are able to listen to me, you are able to hear me, you are able to see this whiteboard, and that is nothing but applications of total internal reflection. And the first one is very important. So let's discuss applications of total internal reflection. उसमें पहला ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स. ऑप्टिकल फाइबर, राइट. तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर. बहुत सिंपल केस है ये. द केस इज समथिंग लाइक दिस. हमारे पास एक मटेरियल है, राइट. सम मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7. तो ये जो मटेरियल मैंने लिया है, दिस पर्टिकुलर ट्यूब, वायर तो नहीं बोल सकते, ट्यूब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7. मतलब ये हॉलो नहीं है. ओके, देन इसके ऊपर हम लोग और एक कोटिंग करते हैं with some other material. So we do an extra coating. We do an extra coating with the help of a material of refractive index 1.5. तो देखो अंदर का जो मटेरियल था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया, 1.7. बाहर का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया, 1.5, राइट. तो अंदर का मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर है और बाहर का जो कोटिंग है दैट इज ऑप्टिकली थिनर. ओके, तो ये जो अंदर है दिस इज कॉल्ड एज कोर, और जो ऊपर का ये मटेरियल है जो कवर किया है हमने दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, राइट. कोर क्लैडिंग, जो कोटिंग है दैट इज क्लैडिंग, जो अंदर मटेरियल है दैट इज कोर. अब होगा क्या, व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे. हमें ये पता है that light is traveling from air because outside is air. Okay, the light is traveling from air into a denser medium, क्योंकि जो कोर है उसका डेंसिटी कितना था, उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.7. क्या होता है whenever light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal. So light is in this case bending towards normal. So this is how I am showing it. The light is bending towards normal. Okay, the real physics starts here. पहले तो हमने सिर्फ लाइट को अंदर भेजा, राइट. हमारे पास एक ट्यूब है
ट्यूब का अंदर का मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 है। इस ट्यूब को हमने एक बहुत थिन कोट कर दिया, थिन कोटिंग कर दिया, कवर कर दिया, क्लैडिंग बोलते हैं उसको। उस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब कोर ऑप्टिकली टेंसर है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब वो ऑप्टिकली थिनर है। करेक्ट। अब हमने एक रे ऑफ लाइट को बाउंड्री पे इंसिडेंट करवाया है, एंड बिकॉज इस ट्यूब के बाहर एयर होगा, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर, मतलब रेयर मीडियम, इनटू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, अभी क्या होगा कि ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो मैं यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज सो एडजस्टेड, इसको हम लोग ऐसा एडजस्ट करते हैं दैट द लाइट, I mean, I would say ये angle ऐसा adjusted है that this particular angle I is greater than critical angle. Or as I told you in the last slide itself, whenever the angle of incidence is greater than critical angle, the ray of light is totally internally reflected. तो रे ऑफ लाइट जो होगा वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। गुड। अब इस बाउंड्री पे ओवर हियर, क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट हुआ, पहला रिफ्लेक्शन हो गया, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया, फिर अभी वो ट्यूब के सेकेंड वॉल पे आ गया रे ऑफ लाइट, तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे भी वही होने वाला है। क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्यों ऐसा होगा? बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बेसिक पता होना चाहिए, और इसलिए मैंने पहले ही लेक्चर में ऑप्टिक्स के मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंटेंशनली करवाया है, इवन दो इट वाज डिलीटेड फॉर दिस ईयर। मैंने आपको बताया था, if and only if the reflection is in the same medium, then the angle of incidence and angle of reflection are same। मतलब ये अगर I है तो ये एंगल भी I होगा। मैं इसको जूम करके दिखाने वाला हूं। वैसे अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, राइट। फिर ये एंगल अगर I है तो ये एंगल I हो गया, फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी I होगा। मतलब एक बार आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ऑफ कोर क्लैडिंग को ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया, तो उस केस में हर एक बार जब जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा, राइट। So I will draw this diagram with little zoom so that you understand what I am trying to show and what I am trying to say। देखो ऑप्टिकल फाइबर कुछ और नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर जो है इट इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अप्लाइड। तो ये हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का देखो दैट ट्यूब इज डबल लेयर्ड, तो ये अंदर का लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। फिर हमने इसके ऊपर एक थिन कोटिंग लगा दी, ये थिन कोटिंग है, राइट। ओके, तो थिन कोटिंग दोनों साइड से करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू लाइक एक साइड कोटिंग की एक साइड नहीं किया, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो दूसरी साइड पे भी कोटिंग किया है। ओके, ये जो कोटिंग किया है इसके लिए हमने मटेरियल कुछ और यूज किया है, और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, राइट। जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोर, जो आउटर कोटिंग है दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग।
नाउ व्हाट विल हैपन इज, हम एक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, राइट। इस ऑप्टिकल फाइबर के बाहर तो एयर है, मतलब रेयर मीडियम है। देन जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, मतलब अभी तक लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर गया नहीं है, बट जब भी वो जाएगा इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, so the light is bending towards normal, right। अब ये जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस आया, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, मतलब कोर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और क्लैडिंग का 1.5, मतलब क्लैडिंग जो है वो ऑप्टिकली थिनर है। तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री पे हम लोग एंगल ऐसा एडजस्ट करवाते हैं such that this particular angle over here, angle of incidence, this angle of incidence is greater than critical angle। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ गया, इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, so light will suffer total internal reflection, and from the laws of reflection what we know is, if the reflection is in the same medium, then angle of incidence and angle of reflection are same। तो ये भी आ गया angle of reflection R equal to angle of incidence I, तो ये भी I आ गया because the reflection is in the same medium, right। तो अभी पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, फिर रे ऑफ लाइट दूसरे वॉल पे आ गया। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करने के बाद दूसरे वॉल पे आ गया। दूसरे वॉल पे क्या हो रहा है, you see this angle is also going to be I, alternate angle theorem, right। जो भी बोलते होंगे आप, पर ये एंगल भी I होगा। अब ये एंगल भी I आ गया, मतलब ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो वापस से जो रे ऑफ लाइट है, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग आउट, इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड अगेन, नॉट आउट। तो वापस से लाइट का, रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड अगेन ये एंगल भी आई है बिकॉज द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। तो ये स्टोरी चलती रहेगी कब तक, जब तक हम चाहे तब तक। तो रे ऑफ लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, राइट, करेक्ट। This is how an optical fiber works। Advantages, advantages of optical fiber over normal wire, there are many। क्योंकि हम लोग पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, वैसे ब्रॉडबैंड क्या होता है, हम लोग एट ए टाइम 90,000 सिग्नल्स, मतलब 90,000 चैनल्स भेज सकते हैं। उप्स, व्हाट इज चैनल, देखो ऐसा है, हर एक चैनल का एक फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। अगर आप जीटीवी देख रहे हो तो एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है वो, राइट। आप सोनी देख रहे हो तो वो अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो ब्रॉड बैंड, ब्रॉड और बैंड मतलब बैंडविड्थ। तो ब्रॉड बैंडविड्थ मतलब इट कवर्स अ ह्यूज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इट हैज मोर चैनल्स, करेक्ट। हाँ, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी मेनी 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 चैनल्स, मेनी सिग्नल्स। फर्स्ट एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसमिशन हम लोग करंट के थ्रू नहीं कर रहे, मतलब वो नॉर्मल वायर के थ्रू नहीं कर रहे। अगर करंट के थ्रू करते तो फिर वहां पे हीट होता, मैंने ऑलरेडी बताया है। क्योंकि करंट मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब हीट, आई स्क्वायर आर लॉस, तो हीट बने, वहां पे लॉस होगा सिग्नल का। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टेशन हर सिटी के पास में होते हैं। You cannot produce electricity in Delhi and bring it to Maharashtra, possible नहीं है ये। lot of heat is generated। फिर तुम जब इंटरनेट, अगर तुमको 30 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps चाहिए, इतना फास्ट का चाहिए, तो नॉर्मल वायर वर्क नहीं करेगा, तो इट फेल्स।
गर्मी में तो और ज्यादा फेल्स, सो इसलिए सेकेंड एडवांटेज, देयर इज नो हीटिंग, देयर इज नो आई स्क्वायर आर लॉस। तीसरा एडवांटेज, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट है, इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। कम से कम 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड तो होगा ही, है ना, तो सिग्नल भेजा यहाँ पे आ गया, राइट। तो दैट्स, देयर इज नो डिले। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, शायद नहीं पता होगा बिकॉज यू आर not much but 14 years younger than me, more or less. When I was in more or less in 5th or 6th standard, तब तो फोन कॉल मतलब नॉर्मल लैंडलाइन से कॉल लगाने के लिए भी परेशानी थी। यू नो अर्लियर क्या था कि कॉल करोगे फिर वो ऑपरेटर के पास जाएगा, फिर ऑपरेटर बोलेगा रुको मैं दूसरे एंड पे कनेक्ट करता हूँ, हुआ तो ठीक नहीं तो गया, राइट। नाउअडेज मोबाइल उठाया, बट दैट इज समथिंग एल्स। हाँ, मोबाइल के सिग्नल अलग होते हैं, मतलब वो रेडियो वेव्स होता है बेसिकली। आई विल टॉक अबाउट दैट समटाइम्स लेटर। बट नाउ वी आर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट कॉल, हम लोग अभी इंटरनेट के थ्रू ही तो बात कर रहे हैं, तो सी देयर इज नो लैग। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ आपको इमीडिएटली सुनाई देता है, देयर इज नो लैग, ओके। सो थर्ड एडवांटेज इज दिस। फोर्थ एडवांटेज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, अगर आप कॉपर वायर यूज कर रहे हो, वैसे नॉर्मली होता नहीं है बट कॉपर वायर इज एक्सपेंसिव, चोरी होती है फिर, राइट, इट गेट्स stolen because it is expensive। अभी धुले से पास में नियर साकरी, आई थिंक साकरी से भी अंदर निजामपुर छड़वेल, दैट देयर इज अ स्मॉल विलेज, वहां पे वो विंड मिल लगा था सुजलॉन कंपनी का, फेल हो गया क्योंकि कॉपर वायर लोग चुरा के ले गए थे। सो देयर इज वन मोर थिंग, इफ यू ट्राई टू सेंड सिग्नल वाया कॉपर वायर फिर और परेशानी है। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर अ नॉर्मल cable, by the way, right? So what I will do is I will quickly revise, and ये जो optical fiber के बारे में हमको लिखना है, that we will go into next session. So quickly revise. Total internal reflection आपको already पता है. So I am just going to tell you about critical angle, and then I am going to tell you about optical fiber. Critical angle is as simple as it can be. Light का source, ray का source डेंसर मीडियम में, जैसे कि पानी में है, ग्लास में है, क्योंकि डेंसर मीडियम में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर, मतलब बेसिकली रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। whenever light will travel from denser, optically denser medium into optically rarer medium, it will bend away from normal। जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जाओगे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कहाँ पे ये एंगल, डेंसर मीडियम में है। इसलिए मैंने क्या लिखा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इनटू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90, दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो हमने बस वो आइडिया यूज किया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, हमको मिल गया रिलेशन बिटवीन refractive index and critical angle. So critical angle is sin inverse of 1 by refractive index of the denser medium. Denser medium water होगा तो water, glass होगा तो glass. Then we have went to a very interesting concept which is called as optical fiber. Optical fiber में एक fiber है, एक केबल है बेसिकली, एक ट्यूब है बेसिकली, जिसमें अंदर का जो मीडियम है इसको बोलते हैं कोर, मतलब डबल लेयर होता है ये। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेटेस्ट से 1.7। उसके ऊपर हम लोग एक दूसरे मटेरियल की कोटिंग करते हैं, एंड दैट मटेरियल और दैट कोटिंग इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ये कंडीशन ए सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली मीडियम, तो कोर हैज टू बी ऑप्टिकली डेंसर, क्लैडिंग हैज टू बी ऑप्टिकली रेयर, तो इसलिए क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है। तो वी मेक श्योर हम लोग ये ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जब पहली बार रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा एट द बाउंड्री ऑफ कोर क्लैडिंग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब इट विल, द रे ऑफ लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड।
But from the laws of reflection, if the reflection is in the same medium में है क्या, कोर से आया कोर में गया, राइट. तो angle of incidence and angle of reflection are same. फिर ये एंगल आया है तो ये एंगल आ जाएगा, बेसिक ज्योमेट्री. फिर वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, तो वापस से ये आया है. फिर यहाँ इस बाउंड्री पे वापस वही होगा, जब तक हम चाहेंगे तब तक ही होगा, राइट. सो दिस इज ऑप्टिकल फाइबर. Multiple total internal reflection used to transmit high-speed data at larger distances without loss. And there are many more advantages of optical fiber over normal cables, right? That we will discuss in the next session.